Keep your back upright and keep your shoulders relaxed. Let the chin in parallel to the floor. Connect to your body and feel the position of the legs, spine, hands, and the face. Feel that the body's awareness continues to remain for a while. The mind is constantly connected to the body, conscious of the body, aware which is there, back. But apart from there, the other parts of the body are relaxed. Bring your attention to the face, the forehead, the eyebrow relaxed, the jaws and the tongue relaxed. Gentle smile is still there, continued on the face, so that the muscles of the cheeks can also relax. Let the attention now come to the breath. Feel the incoming and the outgoing continues to move effortlessly on its own as it wants without any control. Watch the incoming breath, watch the outgoing breath. Now, mind. Feel the mind is present in the present and completely free from any other distractions, any other emotions, any other thoughts. Present in the present. With the same frame of mind, we will start by chanting the Patanjali's prayer. Those who know, they can continue with me. Yo lam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmi abahu purshakaram shankhachakrasidharinam sahasrashirsham shvetam pranamami patanjalim. Hari grab your palms on your Namaskar everyone. Namo Namah. What I will be talking today is the types and categories of yoga asanas. Yeah. Most generally, we know that yoga asanas are categorized into three parts, which is relaxative asanas, which is meditative asanas, and which is cultural asanas, right? So, why this kind of categories like this? Why relaxative? Why meditative? Why cultural? क्यों ऐसा है? नहीं थी क्या? सबको एक में डाल दिया होता, आसन है ना, 84 लाख आसन, तो सबको एक में डाल दिया होता. क्यों ये अलग अलग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है? Any idea? Just, and there is no wrong answer. We are all growing, so there is nothing like wrong. So you just, whatever is there in your mind, you can say. Yeah.
सोयीसाठी. यस स्वाति जी. यस श्रद्धा जी. सोयीसाठी. I don't know in Hindi. इजी होने के लिए, समझने के लिए, इजी तरह सॉरी. से, इजी तरह लोग समझने के लिए. यस, ताकि लोग समझ सके इसलिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. बराबर श्रद्धा जी? हाँ, या यू आर राइट श्रद्धा जी, आप जो बोल रहे हो बराबर है. एक समझने के लिए, इट इज राइट, होने के लिए, समझने के लिए. यस यस, यू आर राइट श्रद्धा जी. और कुछ ताकि सबको पता चले. अरे प्रत्येक आसनाचा वेगवेगळा मेडिटेशन इफेक्ट बोले तो ये वाले आसन आएंगे. ओके, प्रत्येक आसनाचे वेगळे वेगळे इफेक्ट होतो. ओके, यस. सो सम विल इफेक्ट, some will focus more on relaxation by, जैसे भगवत गीता के अंदर कहा गया है भाई युक्त आहार, युक्त विहार, सब कुछ जो युक्त, जो राइट होना चाहिए. क्या बॉडी तभी हेल्दी रहेगी जब उसको बराबर से रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जब उसको फिजिक है तभी. दूसरा, उसको बॉडी तभी हेल्दी होगी जब मेंटली भी रिलैक्स करेंगे, और जब बॉडी को अलग अलग दिशा में घुमाएंगे, अपने मेरुदंड को लचीला रखेंगे, अपने लिम्स को, अपने जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो बॉडी वैसे भी अच्छी रहेगी. यानी 3 तरह के रिलैक्सेशन. एक तो फिजिकल रिलैक्सेशन, ऐसे ही रिलैक्स हो गए, एक तो स्ट्रेच करने के बाद रिलैक्सेशन, और एक फाइनली मेंटल रिलैक्सेशन. जो हमारा लास्ट क्लास था, अगर आपने नोटिस किया, उस कोशिश की थी. यानी हम क्या कर रहे थे, हम एकदम सजग थे. फाइनल पोस्चर के अंदर जब हम होल्ड कर रहे थे, तो हम फाइनल पोजीशन के अंदर टेंशन था, विच इज कॉल्ड स्टैटिक टेंशन, यानी एक ही पोजीशन के अंदर लंबे समय के लिए थे, वहां पे रुके थे, लेकिन सजगता के साथ थे. सो वी आर स्ट्रेचिंग ऑल्सो, एट द सेम टाइम वी आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ द ब्रेथ, मे बी वॉचिंग द ब्रेथ. सो indirectly, in the posture, the physical relaxation, mentally aware, so it can also become a state of meditation. And finally, the relaxation that we are talking about. So one asana can also bring all the 3 effects together. We can relax completely, we can also become meditative in nature, and we can also stretch simultaneously. बराबर, ये तीनों होते हैं. लेकिन खास करके हम ये 3 कैटेगरी में क्यों डिवाइड करते हैं कि बॉडी को जो चाहिए कंप्लीट रिलैक्सेशन, या फिर कंप्लीट स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी एंड देन गोइंग इनटू रिलैक्सेशन, या ओनली मेडिटेशन विच इज रिलैक्सेशन ऑफ द माइंड, ये तीनों की आवश्यकता है. इसलिए ब्रॉडली इस 3 चीज में क्लासिफाई किए गए हैं: रिलैक्सेटिव आसनास, मेडिटेटिव आसनास और कल्चरल आसनास. ठीक है. अब 2 आसन, काफी बार 2 आसन रिलैक्सेटिव आसन के अंदर आते हैं, एक तो शवासन और एक तो मकरासन. बाकी जो भी मॉडिफिकेशन नए नए हुए हैं वो सब भी थोड़े से अंदर आएंगे, लेकिन 2 आसन सबसे इंपॉर्टेंट है. बराबर ना, शवासन और मकरासन. उसके बाद मेडिटेटिव में तकरीबन 8 से 10 आसन है, चाहे वो सुखासन से लेते हुए अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन, गुप्तासन, ऐसे अलग अलग, वज्रासन, अलग अलग आसन. एंड फाइनली कल्चरल आसन है. कल्चरल आसन यानी क्या, जो ऋषि मुनि ने, अरे ये पिकॉक है, उसको डिपिक्ट किया, ध्यान, अरे इससे तो ये बेनिफिट हो सकता है, तो ये लिखा गया कि ये करेंगे तो इससे ये अच्छा हो जाएगा आपको. आप फिर जो भी खाओगे, अगर मैं मयूर आसन करता हूं तो मैं जो भी खाऊंगा उसको पचाने की शक्ति रखता हूं, चाहे वो विष भी हो तो विष को भी पचा लूंगा. उतनी पेट के अंदर ताकत बढ़ जाती है, जठर के अंदर ताकत बढ़ जाती है. राइट. सो एज ऋषि मुनि सॉ थिंग्स, दे फाउंड, अरे ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. तो ऐसे ब्रॉडली कुछ पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन की गई है. जैसे कुछ आसन लिए गए हैं ऋषि मुनि के नाम से, कुछ आसन लिए गए हैं शेप के आकार पर, या चक्र यानी क्या, व्हील, सो शेप के आकार पर लिए गए हैं. कुछ आसन लिए गए हैं एनाटॉमिकल नेम के हिसाब से. या फॉर एन एग्जांपल, जब हम आसन करते हैं तो सबसे पहले, इजी टू रिमेम्बर, सबसे पहले ऋषि मुनिस के नाम आ गए. राइट. ऋषि मुनिस कैसे कौन से नाम है, डू यू रिमेम्बर? ऐसे कौन से नाम है? वशिष्ठासन, यस. भारद्वाज आसन, यस. और काउंटिन्यूस,
Hello. Hello. Am I? Hello. Yes. Okay. Shape. जो shape है, shape कैसे कैसे shapes है? त्रिकोणासन, त्रिकोणासन, चक्रासन, पर्वतासन. ओके ओके. फिर एनिमल्स के पास से लिए कुछ आसन, एनिमल के ऊपर से लिए, जब हम विन्यासा योग करते हैं तो कुछ नंबर्स यूज करते हैं, करते हैं, तो वो भी हो. यानी क्या हुआ, उन्होंने देखा, उनको वो अपील किया, उन्होंने वो खुद पे इम्प्लीमेंट किया और उसके फायदे लिए. और इसी के कारणवश इतनी सारी ब्रॉड कैटेगरी है, 84 लाख आसन्स कहते हैं ना, इतनी ब्रॉड कैटेगरी है, इतने सारे स्पीशीज है, इसलिए इतने सारे आसन्स भी है सब. लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा थेरेपी वाइज थोड़ा सा बात करने की कोशिश कर रही है. क्यों मैं थेरेपी वाइज कह रहा हूँ? बिकॉज हमने ये तो देख लिया रिलैक्सेटिव के इतने हैं और ऊपर से मेडिटेटिव के इतने आसन है, जो बचते हैं वो कल्चरल आसन है. अब कल्चरल आसन्स को कैसे हम डिफाइन कर सके, बराबर, सब उसके अंदर कॉम्बिनेशन सब कुछ है, चाहे वो नेचर से लिया गया हो या एनिमल से लिया गया हो या कोई ऋषि मुनि से लिया गया हो, ये सब एक के अंदर फिट हो जाते हैं. अब इसको करें. सो ये कहते हैं आसन की फैमिली. ओके, ये आसन की फैमिली. अब आसन की फैमिली यानी क्या, कैसे, अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लासिकली देखूं तो क्लासिकली जैसे कैवल्यधाम की स्कूल है, तो कैवल्यधाम की जब स्कूल उनमें करते हो, फिर पेट के बल लेट के आसन करते हो, फिर सिटिंग में आते हो, सिटिंग के आसन करते हो, फिर स्टैंडिंग के आसन करते हो, और फिर आप मेडिटेशन की तरफ, प्राणायाम की तरफ जाते हो, और फिर आप जाते हो मेडिटेशन की तरफ, एंड फाइनल रिलैक्सेशन. ये एक कैटेगरी है क्लासिकल ट्रेडिशनल स्कूल की. ये ऐसे आसन को डिवाइड करते हैं. क्यों ऐसे? बिकॉज जब बच्चा सोता है तो बैक के बल रहता है, फिर वो धीरे धीरे घूमने लगता है, फिर धीरे धीरे बैठने लगता है, फिर खड़ा होने लगता है. तो ऐसे उन्होंने ऐसे कैटेगराइज कर दिए. लेकिन कुछ स्कूल ऑफ योगा कैटेगराइज करते हैं, स्पेशली मॉडर्न स्कूल राइट नाउ, then loosening practice, then they will go for standing asan, then sitting asan, then prone asan, then supine asan, then pranayama, then meditation and relaxation. बराबर. तो ये भी एक कैटेगरी हो गई. पहले वाले में पेट कमर के बल लेटने वाले से शुरू कर रहे थे, इसमें हम लूजनिंग से शुरू कर रहे हैं, जॉइंट मोबिलिटी या स्टैंडिंग से शुरू कर रहे हैं. या अब एक बार हमने क्लास में एक्सरसाइज की जब बात की थी, या फिर हमने जब योग की भी बात की थी, तो हमने कहा था कि योग खाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं है, बराबर ना. योग से हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, हमारी एजिलिटी भी बढ़ेगी, हमारा स्टेमिना भी बढ़ेगा, हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर हम एनाटॉमिकली खुद को देखें तो एनाटॉमिकली जो आसन की फैमिली, जो जैसा मैंने शब्द का इस्तेमाल किया आसन की फैमिली, ये पर्टिकुलर 7-8 चीज में डिवाइड होती है. अब क्यों 7-8 चीज में? बिकॉज जब आप एक करोगे, पहला वाला करोगे तो दूसरे को अफेक्ट करेगा, दूसरा वाला करोगे तो तीसरे को अफेक्ट करेगा, तीसरा चौथा, चौथे को पांचवा, पांचवे को छठवां. सो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. तो सबसे पहले आसन की जो कैटेगरी है या फैमिली है वो आती है स्टैंडिंग आसन के अंदर. ओके, क्यों स्टैंडिंग आसन? एनी आइडिया स्टैंडिंग से क्यों? क्या श्रद्धा जी? नहीं मालूम. स्टैंडिंग से any idea? Just maybe yes. I'm involving all the muscles in that. So yeah, standing asan can open initially. Yes, very rightly you said, Saraswati ji. Standing asan is less, so the more muscles are. Okay. Standing asans can open the body beautifully starting mein hi. And that is the reason why to go deeper into the asan, it can play an important role. And also standing asan can also be a little demanding, and that's why strengthening. Yeah. Before I forget, let me check with, hi Balram sir, how are you now? Balram ji? Yeah. Please carry on. You better, sir? Last time? Yeah. You're better, no, now? Yeah. Okay. Thank you. So, इसलिए standing के आसन जो है वो ऐसे क्यों स्टैंडिंग के? बिकॉज थोड़े डिमांडिंग है और बॉडी बहुत अच्छे से ओपन कर सकते हैं. देखे तो अपना बॉडी का जो एनाटॉमी, टॉर्सो इंक्लूडिंग द हेड, यानी हेड और स्पाइन और
limbs, upper limbs and lower limbs. Barabar? Right? Am I freezing? You can hear me? Just please show your thumbs up if you can hear me. सर सम डिस्टरबेंस है. Because आज पता नहीं नेटवर्क का थोड़ा सा हाँ, या आज थोड़ा सा या मेरे साथ मेरे मोबाइल की भी नेटवर्क की भी थोड़ी सी ये है क्या. ओके. सो बॉडी को अगर हम देखें तो हेड और स्पाइन ये एक चीज है और जो लिम्स है वो दो चीज है. बराबर. दूसरी चीज है. अब लिम्स की बात करें तो लिम्स के दो कनेक्टिंग पॉइंट है. Your voice is cutting. सर की आवाज ब्रेक हो रही है ना. आवाज नहीं आ रही है. हाँ आवाज नहीं आ रही है. सर कुछ नहीं, आप दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? रिकॉर्डिंग बंद करो प्लीज. Who did recording? Sir, I'm calling, sir. I'm asking him to stop. Yes. I've joined via mobile. नहीं सर, कुछ नहीं Yes, sir. सुनाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. Just a second. Just a second. विजय जी मुझे मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया. प्लीज ऐड मी टू कनेक्ट मी. हेलो 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 Yes. हेलो. Audible, sir. Am I audible now? Am I Yes. audible now? No, yes. Yes, sir. Yes, sir. Let me just disconnect from here. So स्टैंडिंग आसन की जब बात करते हैं या फिर अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर को देखें तो हेड और स्पाइन है और बाद में जो कनेक्टिंग दो पॉइंट्स है वो लिम्स है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स. यस, वेरी राइटली. बिकॉज जब भी आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मुझे हलासन करना है और अगर हलासन के अंदर अगर मेरे कोर स्ट्रेंथ रहेंगी तो मैं पैर को बहुत इजी तरह से पीछे की तरफ लेके आ सकता हूँ. लेकिन अगर मेरी कोर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मैं 90 डिग्री आके अटक जाऊंगा. वो भी एक हो सकता है. Okay, because just to move the legs behind, what we do is usually we engage the core to push the leg behind. This is one. Yeah. Hello.
Hello. Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. We can hear you. You can hear me? Yeah, because I don't know what's happening. I can. We can hear you. Okay. So standing asanas are essential because the range is better, and then after that, core strengthening is important. Now, core strengthening can be done in the beginning of the class or after standing asanas. Now, why in the beginning of the class? Because even sometimes standing asanas are demanding, as I said earlier. So standing asanas requires a good core. So if the core is strong, standing asana can also become easier. But otherwise, what you can do is you can practice the core strengthening asanas separately. And when we say separately means after standing asanas. And when we talk about core, core के 3 हिस्से हैं. जब हम abdomen muscle की बात करते हैं, abdomen, yes, I can see now what's happening. So abdomen muscles के 3 हिस्से हैं. सबसे पहला हिस्सा है जिसको बीच में जो 6 पैक जिसको कहते हैं abdominal rectus, या वो जो सेंटर में है ना, जो 6 पैक, या abdominal rectus है, या और फिर उसके बाद में साइड से जो लाइन मूव होती है डायगनली उसको कहते हैं obliques. Okay, so there is obliques, upper obliques, lower obliques, और there is rectus abdominis, और उसके अंदर एक तीसरा डीप लेयर है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स अब्डोमिनस, जिसका काम है सारे ऑर्गन्स को बराबर होल्ड करके रखना, सारे ऑर्गन को बराबर होल्ड करके रखना. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट abdominal muscles, this 3 categories, whether rectus abdominis is there or obliques is there or transverse abdominis is there, जब ये स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप अपने आप थोड़े से टाइट भी रहोगे. क्यों टाइट? देखो कैसा होता है, हमारे छाती के अंदर रिबकेज है. रिबकेज का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना. 2 ऑर्गन्स, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे रिबकेज के अंदर है, वो है हार्ट और दूसरा है लंग्स. सो रिबकेज, देयर इज अ बोनी स्ट्रक्चर which can help these 2 organs to protect. Okay, लेकिन पेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं. पेट में खाली पीछे से एक स्पाइन जा रही है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं. तो आगे जो बचता है या साइड में जो बचता है या फिर पीछे भी जो थोड़ा बचता है वो खाली मसल्स है. और हम क्या करते हैं मसल का, जैसे मैंने पहले एक बार कहा था, मसल हैव अ वेरी सिंपल फंडा, यूज इट और लूज इट. अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो भी थोड़ा सा वीक होने लगेगा. एंड दिस वीकनेस कैन लीड टू सो मेनी अदर डिसऑर्डर्स. फॉर एन एग्जांपल, अगर मसल बहुत वीक हो गया तो ऑर्गन वहां से बाहर निकलने लगता है, जिसको हम कहते हैं हर्निया कहते हैं. या फिर अगर मसल स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स की जगह होनी चाहिए वो ऑर्गन्स की जगह थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स एनलार्ज हो सकते हैं, सो ऑन. तो एब्डोमेन को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है. तो कैसे स्ट्रांग रखा जाए? अगर हम देखें, जैसे हलासन हो गया, विपरीत करनी हो गया, सर्वांगासन हो गया, ये सारे जो एब्डोमेन के लोअर हिस्सा है, जिसको लोअर एब्डोमिनल रेक्टस कहते हैं, उसको स्ट्रांग रखने के लिए बहुत काम आ सकता है. और फिर जब हम द्रोणासन करते हैं या फिर नौकासन करते हैं, वो दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से को बहुत काम आ सकता है. और जब हम कटी वक्रासन या फिर हम पैर को उठा के एक तरफ लेके जाते हैं, वो हमारे ओब्लिक्स के लिए काम आ सकता है. यानी जब आसन करते हैं तो अपने आप कोर स्ट्रेंथनिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन उसको अगर हम अलग से करें तो दैट विल बी इवन बेटर. सो अलग से क्या क्या है? अगर आपने पवन मुक्तासन सीरीज देखी होगी तो पवन मुक्तासन जो बिहार स्कूल ऑफ योगा की है ना, आसन, प्राणायाम, मुद्रास एंड बंदास, तो उसमें 3 सीरीज दी गई है स्टार्टिंग में. पवन मुक्तासन सीरीज 1, 2 and 3. फर्स्ट इज फोकसिंग ऑन rheumatic, all the rheumatic joint related thing, बराबर. Second is focusing on I believe abdomen strengthening thing. तो abdomen strengthening thing का काम आपको करना है. उसके अंदर बहुत सारे, तकरीबन 10 से 12 आसन दिए गए सेकंड या थर्ड सीरीज के अंदर. वो सारे एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छे. अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी कोर स्ट्रेंथ बनी रहेगी. और कोर स्ट्रेंथ अगर आपकी होगी तो आपके अदर आसन के अंदर करना, डिफिकल्ट आसन भी करना, वो थोड़ा सा इजी हो सकता है. सो सबसे पहले स्टैंडिंग आसन, उसके अंदर रेंज बढ़ सकती है और उसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट हो सकती है. और उसके बाद आए हम कोर स्ट्रेंथनिंग. आजकल हम बहुत प्रभावित होते हैं. जैसे मेरे सामने भी स्क्रीन पे तनिष्का जी है, तो उनका एग्जांपल लेता हूँ. तनिष्का जी ने सीधा बोले शीर्षासन करना है और फिर शीर्षासन से चले गए हैंड स्टैंड के ऊपर, या हाथ पे खड़े रह गए. तो ऑल दी आर्म बैलेंसिंग, चाहे वो बक्कासन हो, काकासन हो, आर्म बैलेंसिंग आसन हो, जिसके अंदर आर्म पे आपको बैलेंस करना हो, या उसके अंदर अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आर्म बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे इजीली.
Why? Because in that position, your core has to be strong enough to sustain the body in a balanced position. अगर कोर आपका वीक रहेगा तो बॉडी वहां पे सस्टेन ज्यादा नहीं कर पाएगी और वहां से निकल जाएगी, पोस्चर से निकल जाएगी. तो जब हम स्टैंडिंग आसन के बाद जब कोर की बात करते, कोर के बाद जब बात करते, इट इज आर्म बैलेंसिंग आसन. उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. आर्म बैलेंसिंग, कोर स्ट्रांग होगा तो आर्म बैलेंसिंग इजी हो जाएगा. अब आर्म बैलेंसिंग की बात करते हैं तो आर्म यानी हम काफी बार फोर आर्म के ऊपर बैलेंस करेंगे या खाली पाम के ऊपर बैलेंस करेंगे. तो जब हम पाम की बात करते हैं तो पाम, फॉर एन सिंपल एग्जाम्पल, विजय जी मैं चाहता हूं आप स्क्रीन में कौन है जो लास्ट टाइम कोई भी एक व्यक्ति एक्सेप्ट धारणा जी, एक्सेप्ट सरस्वती जी, कोई भी एक व्यक्ति, जैसे कल्पना जी, क्या बात है कल्पना जी, मैं चाहता हूं आप एक फोरआर्म, आप हाई प्लैंक करो. हाई प्लैंक, सूर्य नमस्कार का जो स्टेप है ना, अश्व संचालन के बाद का हाई प्लैंक, वो करो. आई बिलीव सब लोग कल्पना जी को देख सकते हैं, बराबर ना? कल्पना जी आप अनम्यूट कर दो ना प्लीज खुद को. हाँ आई. हाँ ओके कल्पना जी, हाँ ये करो, हाई प्लैंक करो. ओके अब कल्पना जी आप देखो आपकी कलाई में क्या हो रहा है. जस्ट वॉच व्हाट इज हैपनिंग एट योर रिस्ट. बराबर? हाँ ठीक है. अब छोड़ दो कल्पना जी. देखो वो भी चेक कर रहा है वेदर आपका स्पाइन बराबर है कि नहीं, न्यूट्रल पोजीशन में है कि नहीं, कोर एंगेज है कि नहीं. कल्पना जी वो चेक कर रहा था आपको स्टिक से. कल्पना जी छोड़ दो, कल्पना जी छोड़ दो बस. अरे रहने दो उसको, कल्पना उसको रहने दो, उसको रहने दो, उसको रहने दो. हाँ बस बस सुनो 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 सुनो, बस 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 आपने कर लिया ना. मैं चाहता हूं आप फील करो रिस्ट में क्या हो रहा है. कल्पना जी जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिस्ट. ओके अब कल्पना जी छोड़ देना, रिलीज द पोस्चर और स्क्रीन के सामने वज्रासन में बैठ जा. Sorry about this lag today. There's a lot of lag since morning. Connection issue at my end. Yeah. कल्पना जी आप छोड़ दो पोस्चर को और वज्रासन में बैठ जाओ. हाँ मेरी तरफ देखो. अब इस तरफ टर्न हो जाओ कल्पना जी. जस्ट टर्न टूवर्ड्स मी. यस हाँ ओके क्या बात है. कभी ऐसा लग रहा है कि आप प्लैंक में ही कितनी देर तक हो, फिर अचानक आप वज्रासन में दिख जाते हो, फिर अचानक आप टर्न हो जाते हो. इट्स माई लैग, या माई नेटवर्क लैग. ओके कल्पना जी आपने ये किया ना, तो आपको रिस्ट में क्या हुआ. Unmute yourself. Unmute yourself. शिवरिंग. थोड़ा शिवरिंग था और इसमें प्रेशर था. Sir, unable to hear you. Unable to. सर आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है. वेरी वेरी पुअर वॉइस. The voice is cutting, sir. आर्म बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा पूरा वजन इस पे आने लगता है. that's the reason why you feel strain at the wrist and you also feel strain in your forearm. बराबर? तो मैं चाहता हूं अब कल्पना जी आप क्या करना, अपना वेट खाली यहाँ पे मत लाना, अपना वेट यहाँ पे भी लाना और इस पे भी लाना. ओके ओके एक बार करो और फिर प्लैंक में होल्ड करो. उंगली देख लो कहां पे आपकी, बराबर एडजस्ट कर लो उंगली को, फिर आ जाना प्लैंक पे. अब करो प्लैंक. यस हाई प्लैंक. अब उंगली को करने के बाद देखो अब क्या है, क्या हुआ. अब छोड़ दो उसको, उंगलियों को छोड़ दो. जैसे पहले थी वैसे करो एक बार, वापस करो एक बार जैसे पहले उंगली की थी वैसे. अब छोड़ दो. अब वापस जैसे अभी बताया वैसे करना. एक बार वापस करो. ओके कल्पना जी ओके रिलीज. कल्पना जी दोनों में फर्क है, क्या फर्क है. जब हम यहाँ पे प्रेशर देते हैं
तो हमारा बॉडी का पूरा प्रेशर यहाँ पे आके नजदीक नजदीक आ तू, नजदीक आ कल्पना, थोड़ा नजदीक। पास में जाओ। यस, जब हमारा प्रेशर यहाँ से जब हम पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं तो हमारा पूरा प्रेशर बॉडी का हाथों पे आता है। और जब नॉर्मली मैं जैसे हाथ रख के जब कर रही थी तो पूरी बॉडी का प्रेशर पूरे हाथ पे आ रहा था, हाथ शफलिंग कर रहा था, राइट। तो हमारा प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर है तो हमारी बॉडी होल्ड इजीली और बेस्ट तरीके से होती है। यस, बराबर बराबर कल्पना जी, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा प्रेशर एक ही जगह पे आता है, यहाँ पे। इसको डिस्ट्रीब्यूट आगे करना बहुत जरूरी है। तो आर्म बैलेंसिंग के अंदर एक चीज याद रखना है, एक तो ये, और दूसरा आपका कोर। अगर आपका कोर भी साथ में, अगर यही पोजीशन के अंदर कल्पना जी, अगर आपका कोर और एंगेज होता ना कल्पना जी, तो आप यही पोस्चर को और लंबे समय के लिए रोक सकते थे। हाँ, एक बार हमने जब ताड़ासन सीखा था तो मैंने धारणा जी को बोला था हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ न्यूट्रल पेल्विस। वो आपको याद है? वो याद है आपको जो धारणा जी ने किया? अब मैं चाहता हूं वही न्यूट्रल पेल्विस हाई प्लैंक में या फिर दंडासन में करके दिखाओ एक बार। तो हाथ का भी ध्यान रखना और पेट का भी ध्यान रखना, और देखो दोनों में फर्क क्या है। पेट को थोड़ा और पुल कर लो अंदर, थोड़ा सा टक इन कर लो। यस, ओके फाइन, टक इन कर लो। यस फाइन। अब देखो फिंगर्स को एंगेज करो। फिंगर्स को एंगेज करने के बाद अब फिंगर्स को छोड़ दो और पेट को भी छोड़ दो। अब वापस दोनों में फर्क देखने की कोशिश करो। अब वापस पेट को एंगेज करो और फिंगर्स को एंगेज करो, वापस फील करो। परफेक्ट, रिलीज। क्या हुआ कल्पना जी? तो हमने 5 पॉइंट्स को एंगेज किया और पेट टकिंग किया तो बैलेंस हमारा इजी फ्लो में था और हम उसको लंबा ले सकते थे। और जैसे हमने हाथों को छोड़ा और पेट को छोड़ा तो वापस से प्रेशर बॉडी के ऊपर, हाथों पे और पेट पे शिवरिंग पोजीशन में था। ओके, यानी क्या, अगर आप पेट को भी थोड़ा एंगेज करोगे आर्म बैलेंसिंग के अंदर तो आपके पोस्चर लंबे समय के लिए रुक सकते हो और कंफर्टेबली रुक सकते हो। बराबर? ओके, अब आप नॉर्मली बैठ सकते हो, नॉर्मली बैठ सकते हो। सो दिस इज द सीक्वेंस। व्हेन द कोर इज स्ट्रांग, आर्म बैलेंसिंग कैन बिकम इजियर। बराबर? अब आर्म बैलेंसिंग हमने कर दिया, उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% लोगों को बैकवर्ड बेंड अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हमेशा पश्चिमोत्तानासन, जानु शीर्षासन, पाद हस्तासन ये वाले ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों? उसका एक कारण है, बैकवर्ड बेंडिंग आसन्स आर डिमांडिंग। या बिकॉज इनिशियली थोड़ा बैकवर्ड बेंड करो तो लोअर बैक में स्ट्रेन आने लगता है, लेकिन हमारी आदत ऐसे बैठ के आगे वाली हो गई ना, झुकने वाली। बराबर ना तनिष्का जी? आपण असे जाता बसतो, तो spine is all the time going forward, and that's why in order to complement it by doing a backward bend, we don't do that. We usually want to do more forward bend. इसलिए बॉडी इतनी अच्छी तरह से बैलेंस नहीं रहती, इसलिए बैकवर्ड बेंड करना जरूरी है। बिकॉज एक बार आपने बैकवर्ड बेंड किया तो आपकी उसके बाद वाली कुछ मूवमेंट थोड़ी इजी हो जाएगी। सो बैकवर्ड बेंड वाली मूवमेंट करनी जरूरी है, चाहे वो सिंपल क्यों ना हो, सेतु बंदासन क्यों ना हो, और अगर डिफिकल्ट वाला करना है तो चक्रासन क्यों ना हो, बैकवर्ड बेंड वाले कुछ आसन होने जरूरी है। बैकवर्ड बेंड ये हमारे शरीर के आगे वाले हिस्से को अच्छे से खोल देता है, तो अगर वो खुले हुए होंगे तो उसके बाद वाली कुछ मूवमेंट इजी हो जाएगी। तो उसके बाद की कैटेगरी, आर्म बैलेंसिंग के बाद की कैटेगरी है बैकवर्ड बेंड। बैकवर्ड बेंड करना जरूरी है। उसका एक दूसरा कारण भी है बैकवर्ड बेंड क्यों करना चाहिए, बिकॉज इन बैकवर्ड बेंडिंग द मसल्स विच आर देयर विच इज कॉल्ड पेक्टोरियलिस, या चेस्ट के मसल्स, या फिर शोल्डर के मसल्स डेल्टॉइड्स, या फिर अपर बैक के स्कैपुला के रीजन के मसल्स, चाहे वो रम्बॉइड्स हो या ट्रेपीजियस हो या फिर लैटिसिमस डॉर्सी हो, ये वाले मसल्स अगर आपके खुले रहेंगे तो आपकी ब्रीदिंग थोड़ी और इम्पैक्टफुल हो सकती है। हम क्या करते हैं, बिकॉज हमारा पोस्चर ऐसा है ना, तो हमारी ब्रीदिंग भी क्लोज्ड है। तो अगर ये वाला रहेगा, जैसे हनुमान जयंती थी ना कल, जय वीर हनुमान, हनुमान जी ने तो स्टर्नम को खोल के दिखा दिया कि उसके अंदर कौन बसता है, और हम क्या करते हैं, हम यूजुअली क्लोज हो जाते हैं, इसलिए हमारी ब्रीदिंग भी शैलो होती है, इसलिए हमारी ब्रीदिंग भी इतनी अच्छी नहीं चलती जितनी चलनी चाहिए। सो व्हेनेवर यू डू बैकवर्ड बेंडिंग आसन्स, योर ब्रीदिंग आल्सो गेट्स इंप्रूव्ड, एंड मोर देन दैट अदर मूवमेंट्स कैन बिकम इजियर। ओके, सो बैकवर्ड बेंड वाले आसन करने जरूरी है।
उसके बाद की कैटेगरी है ट्विस्टिंग। एक बार आपने अगर बैकवर्ड बेंड कर लिया तो आपकी ट्विस्टिंग और अच्छी तरह से हो सकती है, और अच्छी तरह से। ये मैं नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि आप क्या करना, आप जब कल खुद प्रैक्टिस करोगे तो एक बार थोड़ा सा कोर स्ट्रेंथनिंग, सूर्य नमस्कार कर लो, एक दो कोर के स्ट्रेंथनिंग के, एक 1 लेग लिफ्ट या बोथ लेग लिफ्ट, जो भी कोर के लिए आप कर सकते हो वो कर लो। उसके बाद एक बैकवर्ड बेंड करो और फिर देखो बैकवर्ड बेंड के बाद अगर आप ट्विस्ट करते हो तो क्या ट्विस्ट इजी होता है कि नहीं। ओके, डोंट whatever remember this one thumb rule. There are 2 thumb rules वो मैंने पहले शेयर नहीं किया. I want 2 thumb rule. सबसे पहले don't believe in others. खुद प्रैक्टिस करो, अनुभव करो और फिर बताओ. So very important is self practice. And second thumb rule, very important. This is the most important. जरूरी नहीं हर चीज हर एक के लिए बनी. कल्पना जी चक्रासन कर ले, शायद मैं कभी जिंदगी में चक्रासन नहीं कर पाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन माय ओन लिमिटेशंस. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीवन विल बी एबल टू डू एवरीथिंग. रिमेंबर दिस, बिकॉज क्या करते हैं हम जनरली जब क्लास लेते हैं सबका, अरे इसका कितना, अरे सरस्वती जी का कितना बेस्ट चक्रासन हो रहा है, तो नहीं कल्पना जी आपको ऐसे ही करना है. अब कल्पना जी कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने पहले कितना किया है, वो उनका कामकाज कैसा है, कौन से मसल ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कामकाज में, क्या वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं. सो मेनी फैक्टर्स आर देयर एंड व्हाट वी ट्राई टू डू, हम सबको एक ही चीज में बिठाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू पुट एवरीवन इनटू वन सिंगल मोल्ड. नॉट पॉसिबल. तो यानी सब लोग थोड़ा थोड़ा, अगर हम यहाँ पे त्रिकोणासन सब लोग अगर करेंगे तो सबका त्रिकोणासन थोड़ा थोड़ा अलग दिखेगा. शायद 19-20 का फर्क होगा. कुछ लोग 20-20 हो जाएंगे, कुछ लोग 18-20 हो जाएंगे, कुछ लोग 19-20 हो जाएंगे, यानी कुछ फर्क होगा. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज हमको पता नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को क्या चीज होल्ड करके रख रही है, क्या मसल है, क्या बोन है, क्या कोई नर्व कंप्रेशन है, क्या है वो, तो वी डोंट नो. सो दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोसेस. करते 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 यू स्टार्ट बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल. सो डोंट बिलीव इन मी, डोंट बिलीव माई वर्ड्स. प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड कम टू कंक्लूजन. फर्स्ट, सेकेंड, सब लोग एक जैसे नहीं है, सब लोग आसन के अंदर हल्के हल्के अलग लगेंगे. ठीक है, ओके. सो आफ्टर बैकवर्ड बेंडिंग आसन, ट्विस्टिंग आसन कैन बिकम मच मोर इजियर. ओके, ट्विस्टिंग आसन हो जाए उसके बाद वाला है फॉरवर्ड बेंडिंग. और अगर आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया, अगर आपने ट्विस्टिंग अच्छे से किया, फिर जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी मूवमेंट जो है ना वो स्पाइन से नहीं आ रही है. मोस्टली हमारी मूवमेंट कहां से आती है आसन करते हुए? अभी आइदर मिडिल बैक से आती है या लंबर से आती है, या डॉर्सल से या लंबर से, लोअर बैक से आती है. लेकिन एक्चुअली ये मूवमेंट वहां से नहीं, ये मूवमेंट थोड़ी पेल्विस से आनी चाहिए. बराबर, यानी पेल्विस है, पेल्विस के बीच में सेक्रम और कॉकिक्स है, और कॉकिक्स सेक्रम के ऊपर है लंबर. तो हमारी मूवमेंट लंबर से कम, लंबर के साथ साथ सेक्रम से भी आनी चाहिए या फिर पेल्विस से आनी चाहिए. तो अगर आप फिर बाद में फॉरवर्ड बेंड करके देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा अनुभव होगा कि आपकी मूवमेंट स्पाइन से कम और पेल्विस से थोड़ी ज्यादा आ रही है. ठीक है, और वो मूवमेंट क्यों अच्छी है? बिकॉज दैट इज सेफर, या वो दैट विल कीप यू लिटिल सेफ, इंजुरी नहीं लाएगी. मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑल्सो गेट इंजर्ड इन लॉट ऑफ फॉरवर्ड बेंड पोजिशन. उसका एनाटॉमिकल रीजन ये है, जब भी हम फॉरवर्ड बेंड पोजिशन, फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो एक साइड से हमारा मसल इस तरफ खींचता है और दूसरी साइड से हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो इस तरफ खींच रहा है, यानी बोथ द फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर. जब ऐसा होगा तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द बॉडी कैन नॉट टेक इट, इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, एंड इफ इट्स फोर्सफुली डन इट कैन ऑल्सो लीड टू सम वेयर एंड टेयर. या सो इसीलिए जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो और उसके अंदर अगर पेल्विस का इस्तेमाल करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा और इंजुरी से आपको सेफ रखेगा. ठीक है, अब फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया हमने, उसके बाद आएंगे हिप ओपनिंग आसन. अब हिप ओपनिंग आसन की हिप ओपनिंग चाहे वो सिंपल अर्ध पवन हो गया, वो भी थोड़ा हिप को खोल सकता है, या फिर हील को एंकल पे रखते हुए एक नी को, एक एंकल को दूसरे नी पे रखते हुए पुल कर लिया, वो भी हिप ओपनिंग आसन हो गया. वाई हिप ओपनिंग आसन? बिकॉज आपने इतने सारे स्टैंडिंग के अंदर इतना सारा जो डिमांड क्रिएट किया था, अब वही डिमांड को थोड़ा सा रिलीज करना है बाय डूइंग हिप ओपनिंग आसन. तो जब हिप ओपनिंग आसन करोगे, योर
joint, especially lumbar region, sacrum region, hip joint, and below the hip, which is either the groin or the thighs, and also will become much more freer again, will become much more relaxed. तो जो भी आपने डिमांड क्रिएट की थी उसको आप अब हिप ओपनिंग करते हुए उसको रिलैक्स कर रहे हो. ओके, और उसके बाद फाइनल कैटेगरी एक है जिसको कहते हैं इन्वर्जेंस. इसको मैं अभी साइड में रखूंगा बिकॉज इन्वर्जेंस की भी दो कैटेगरी है, हीटी इन्वर्जेंस, कूलिंग इन्वर्जेंस एंड सो ऑन. तो इसको अभी साइड में रखेंगे. उसके बाद आप कर सकते हो शवासन. And after Shavasana, then you can choose to do breathing practice. Then you can go for meditation and so on. तो इस तरह से जब सीक्वेंस, रिमेंबर एक चीज और, माय गुरुजी यूज्ड टू से दिस. हम क्या करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ऐसा ही होता है, बराबर, बॉम्बे के लैंग्वेज में ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए. देयर इज नेवर लाइक दिस. माय सर यूज्ड टू, माय गुरुजी यूज्ड टू से दिस, ये ऐसा भी हो सकता है. मीन्स क्या कर रहे हो आप, सबको ऐसा नहीं बोल रहे, नहीं यही आपको करना है. आप व्यक्ति अनुसार, वो उसकी एज, उसका सेक्स, वो कैसा है, उसके लिमिटेशंस, उसको ध्यान में रखते हुए उसको मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो. ये ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है. सो ये जो मैंने कैटेगरी दी वो मैंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से दी कि अगर आप ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो, तो बॉडी और अच्छी तरह से खुलने लगती है. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए. जैसे हमने पहले कैवल्यधाम में देखा था, कैवल्यधाम का एक जो एग्जांपल लिया था, पहले सुपाइन, फिर प्रोन, फिर सिटिंग, फिर स्टैंडिंग, वो भी कभी कभी कर सकते हैं. या फिर कभी स्टैंडिंग आसन, फिर सिटिंग आसन, फिर सुपाइन आसन, फिर प्रोन, जैसे योगा प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं, वो भी कर सकते हैं. सो देयर इज नो थंब एंड देयर इज नो थंब रूल कि ऐसे ही होना चाहिए. लेकिन एज यू कीप ऑन डूइंग, यू विल कम टू नो that if you want to challenge yourself and if you want to do some demanding asan, and if you go in this anatomical sequence, then your asans and going deeper into the asan becomes even better. That's the reason why of categorizing this. Is this okay up to now? Yeah. अभी जो हमने जो बात की उस पे कुछ क्वेश्चन है आपको? सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने तीन चीज देखी. आसन को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है, कल्चरल आसन, मेडिटेटिव आसन और रिलैक्सेटिव आसन. अब कल्चरल आसन तो कितने सारे हैं, कोई ऋषि मुनि वाले नाम के है, कोई स्ट्रक्चर वाले नाम के है, कोई एनिमल वाले नाम के है, कोई इंसेक्ट वाले है, कोई देव वाले नाम के है. हनुमान आसन, जैसे कल था हनुमान जयंती, हनुमान आसन, बराबर, कितने सारे आसन है. सो इसको अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो इसको हम स्टैंडिंग आसन, स्टैंडिंग आसन के बाद कोर, कोर के बाद आर्म बैलेंसिंग, आर्म बैलेंसिंग के बाद बैकवर्ड, बैकवर्ड के बाद ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के बाद फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद हिप ओपनिंग, एंड देन गो फॉर रिलैक्सेशन. ये ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ताकि एक एक करते हुए हम अपने शरीर के सारे हिस्से का इस्तेमाल कर सके. इफ वी यूज आवर बॉडी कंप्लीटली, देन एन ओवरऑल स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड थ्रू आउट द बॉडी. वरना काफी बार क्या होता है, हम पर्टिकुलर जब मूवमेंट, रेपिटेटिव मूवमेंट वही करते रहते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं, तो certain areas of the muscle becomes very strong, but there is also a repercussion that certain area of the muscle cannot be that strong. So when we do like this, every part of the body can get attention and every part of the body can be used. Okay, now if you have any question. सर आपने इन्वर्जन क्यों skip कोई किया? प्रश्न स्वाति जी? यस धारणा जी बोलो. I asked why you skipped the inversions. आपने inversions क्यों skip किया? इन्वर्जेंस, क्योंकि क्या होता है काफी बार हमारे दिमाग में ऐसा है कि ओके व्हाई आई स्किप्ड, बिकॉज ओके लेट मी टॉक. इन्वर्जेंस के दो हिस्से हैं, एक है हीटिंग इन्वर्जेंस और एक है कूलिंग इन्वर्जेंस. हीटिंग इन्वर्जेंस यानी क्या, शीर्षासन और हैंड स्टैंड, ये हीटिंग इन्वर्जेंस है. और ये यूजुअली कब आएंगे, ये आर्म बैलेंसिंग जब करेंगे उसके अंदर आ जाएंगे. और दूसरा है कूलिंग इन्वर्जेंस. Why cooling inversions? Because जब आप हैंड स्टैंड और शीर्षासन करोगे तो आप अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ रहा है. लेकिन अगर आप विपरीत करनी, हलासन, सर्वांगासन करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके बॉडी का तापमान बढ़ रहा है. सो दे आर कॉल्ड समटाइम्स कूलिंग इन्वर्जेंस. Why cooling inversions? Because cooling inversions are meant for relaxation also. मैं विपरीत करने के अंदर जाके बॉडी को उसी कंडीशन के लंबे उसी पोजीशन के अंदर लंबे समय के लिए रह सकता हूं और कंफर्टेबल रह सकता हूं. सो इट इज अ कूलिंग. इन्वर्जन भी है लेकिन इट इज नॉट मच मोर डिमांडिंग ऑल्सो,
and it will not raise the body's temperature too high, like handstand. अगर आप handstand करोगे तो आपको पता चलेगा बॉडी के अंदर कितना क्षमता लगता है वो आसन को होल्ड करने के लिए, yeah, which is less as compared to विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन and so on. So वो कूलिंग इन्वर्जन है. कूलिंग इन्वर्जन के बाद कहते हैं एक बार आपका ब्लड थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सिर की तरफ चला जाता है और फिर आप रिलैक्सेशन करते हो तो रिलैक्सेशन थोड़ा सा डीपर हो जाता है, ऐसा कहते हैं लोग, या द रिलैक्सेशन इज मच मोर डीपर, एंड देन फ्रॉम देयर you go for pranayama and dhyana. Yeah. Anything else? काय झालं स्वाती? काय नाही. I know I might be bringing new things to your mind, but sometimes this is good to learn. Yeah, from a different perspective. There is one asana, Harshapashvasan. Harshapashvasan contract the vertebrae. The Tadasana stretches the vertebra. The Tadasana stretches the vertebra. The Triang Tadasana on the sideward posture. Now compression of the intervertebral disc. That is the Harshapashvasan. Very simple. Compression on the intervertebral disc. Yeah, like this. And rotate it. Without the legs being rotated. Okay. 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 Yeah. Yes, sir. Yes. Yes, Balram. So you're saying something? No, that's what I want to say. The disc gets compressed, so the flow of the blood becomes better on all the posture. Then do Ardha Kati Chakrasana. The disc gets compressed. Yeah. I think here the disc will only get compressed if you lean little forward, which becomes very automatic when you stretch the hands up. अगर आप हाथ को पीछे लेके ऊपर करोगे तो अपने आप बॉडी थोड़ी सी क्रंच जैसी हो जाती है, especially the middle back region. So, but if you are aware, you can still keep your back straight and raise only the hands. That is also possible. Yeah, sir. Menon, sir. Yeah. It is also possible that you can keep your back straight and only raise the hands. And rotate the cervical, the neck. Rotate the neck. Rotate the neck. So cervical also will get twisted. Lower back also. Lower back. In cervical also, yes. Yeah. When I move forward. Yeah. And I may take up to 180 degrees. Okay, yeah. So it is also stretching the muscles that support the spine on the side and maybe on the waist region also. Yes, it can be also helpful for that. It can be helpful for that. It can be very, especially this particular movement is very good for a shoulder joint practice. Shoulder की mobility के लिए. Yeah, because shoulder के अंदर बहुत सारी movement है, जो दो common movement है वो है extension and then flexion and then extension. This can work on the extension part of the shoulder joints. Huh? Okay. Any other question? Sir, Preeti here. So Yes, मुझे Preeti. पूछना था कि बैक बेंडिंग के बाद ट्विस्टिंग, ऐसा कोई रूल है क्या बैक बेंडिंग के बाद ट्विस्टिंग करना है या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद हिप ओपनिंग? क्योंकि ऐसे क्लास में लेते हैं एक्चुअल में. ऐसे लेते हैं, ऐसा रूल नहीं है, लेकिन एनाटॉमिकली वैसे करे तो थोड़ा सा बॉडी ज्यादा सेफ रहता है, इंजुरी कम हो सकती है. दैट्स द रीजन व्हाई, प्रीति जी. या लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है. रिमेंबर, सबके अलग, जैसे मैंने कहा एक थंब रूल, सब लोग अलग अलग है, तो जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसे ही करेंगे. कुछ लोग को ऐसा जमेगा, कुछ को ऐसा नहीं जमेगा. सो एज बीइंग अ टीचर वी विल हैव टू इवॉल्व एंड चेंज द प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. But there is no rule, huh, Preeti ji? Anatomically, this can be beneficial, but everyone's structure is different, no? So we don't know. Okay, Preeti. Okay, thank you. सर मला एक प्रश्न विचारायचा की मला आधी चक्रासन चांगलं जमायचं सर. नंतर मला 3 वर्षापूर्वी मला चिकनगुन्या झाला होता. तेव्हापासून ना मला म्हणजे चक्रासन असं पाठीचा वरचा भाग उचलला जात नाही. सेतुबंध सर मला चांगलं जमतं, पण चक्रासन जमतच नाही सर. मी खूप ट्राय करते, म्हणजे असं उचललेच जात नाही ते. हो,
हिप उचलत नाही की शोल्डर उचलत नाही? शोल्डर उचलत नाही. Yes. So what happens, Pushpalata ji, in this chikungunya, it is a joint which gets affected, right? Now, Setu Bandhasan is a simpler version of Chakrasana only. Okay? Yeah. It's a simpler version. In your case, you should focus more on the shoulder opening practices. जैसे अभी मेनन सर ने बताया ना, वो वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए. फिर थोड़ा सा आर्म स्ट्रॉन्ग, यानी आर्म को थोड़ा सा एक देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माइनर पुशअप, वो होना चाहिए. थोड़ा सा आर्म का स्ट्रेंथ आपका थोड़ा कम हो गया रहेगा इस चिकनगुनिया के कारण, या फिर शोल्डर जॉइंट इतना ज्यादा अफेक्ट हो गया है कि यहाँ पे जब कोई भी स्ट्रेंथ की बात आएगी वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो अपने को शोल्डर की मोबिलिटी और साथ साथ सिंपल प्रैक्टिस जिसके अंदर हाथ पे थोड़ा प्रेशर आए, जैसे हल्का सा पुशअप हो, माइल्ड पुशअप हो, या सिंपलर फॉर्म ऑफ पुशअप हो, वैसा कुछ करेंगे तो आर्म स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो ये आसन करना इजी हो जाएगा. ये पहली बात. दूसरी बात पुष्पलता जी, आपको कुछ बैकवर्ड बेंड आसन करने चाहिए, और चाहे वो स्टैंडिंग के अंदर हो, ऊर्ध्वाधर हो, या फिर सिटिंग के अंदर उष्ट्रासन हो, ऐसे कोई भी थोड़े बैकवर्ड बेंडिंग आसन थोड़े दिन करो, उसके बाद चक्रासन ट्राई करो. तीसरी बात, जब भी आप करोगे चक्रासन, उसके पहले थोड़ा सा वॉल के सपोर्ट से करना है 2-3 दिन. ओके? पूरा नीचे नहीं जाना है, हमको थोड़ा ही नीचे जाना है, हल्का सा, फिर वापस आ जाना है. उसके बाद ट्राई कर तो हो जाएगा. Because I believe in your case, this is the shoulder joint is affected the most. That is the reason. Okay, sir. बरं. Thank you, sir. Thank you. सर सेम थिंग, चक्रासन मुझे कभी भी नहीं जम रहा. अब जमेगा. पिछले 7-8 साल से नहीं जम रहा सर. चक्रासन नहीं आ रहा, शीर्षासन आ रहा है, लेकिन चक्रासन नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों. कभी एक दिन है ना, हम चक्रासन को तोड़ देंगे पूरा एनाटॉमिकली. कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए, और वो करेंगे तो कैसे हो सकता है, और फिर भी नहीं हो रहा है तो कौन से प्रॉप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चक्रासन हो सके. ठीक है? करेंगे. आणखीन काय? सर मैं रेगुलर उष्ट्रासन कर रही थी, अच्छा जमता है मुझे, जमता था मतलब अच्छा कर रहे थे. लेकिन वन फाइन डे क्या हुआ, थाइज में कड़क करके आवाज आया. थाइज के सेंटर फ्रंट साइड में, हाँ, ऊपर की साइड फाइनल पोजीशन लिया तो उस टाइम में कड़क करके आवाज, आई कुड हियर द वॉइस, इतना जोर से आवाज आया. फिर मैंने छोड़ दिया. फिर अगले 4 महीने लॉकडाउन के ड्यूरिंग हुआ था, तो डॉक्टर के पास मैं गई नहीं. मैंने सोचा लेट मी चेक फर्स्ट, तो होने दे, उसको क्या क्या होता है मैं ऑब्जर्व करती रही. छोड़ दिया आसन करना. 5-6 दिन के बाद सबसाइड होके कम हो गया, बाद में वो कम हो गया. लेकिन अभी कभी भी उष्ट्रासन करते वक्त मुझे डर लगता है. डर क्या कैसा है स्वाति जी? आगे डर के आगे जीत है. यस. करती तो हूँ मैं, लेकिन वन साइड करती हूँ पहले, फिर दूसरा करती हूँ, लेकिन ज्यादा कोशिश नहीं करो. वैसे ही करो. एक साइड करो, फिर दूसरी साइड चेक करो, फिर पूरा भी करने की कोशिश करो. पूरा भी, या और दूसरा, फॉर एन एग्जाम्पल, आप अभी करो उष्ट्रासन, करो अभी करो, अभी करो. अभी मुश्किल है जगह. और ये अरे सर, ये एक दिन में आप चक्रासन और एक दिन में आप सब कुछ सिखा देंगे. ये श्रद्धा का चक्रासन हो गया, अभी वो चक्रासन सीख गई, अभी वो कल से करने शुरू कर देगी. अभी अच्छा है ना, करना चाहिए. जितना हम यूज करेंगे बॉडी का उतना ज्यादा अच्छा है. सर अभी नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल ले लीजिए अभी सैटरडे या कभी, क्या आप? मैं एक दिन लूंगा. ये बार खाली क्या है, सोमैया कॉलेज में एग्जाम चल रही है, फ्राइडे को एग्जाम है और सैटरडे को मेरा क्लास है. उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में मैं प्रैक्टिकल क्लास डेफिनेटली. ओके, एक मिनट. एक स्वाति जी